just like I don't reach Calcutta in 1 minute, I don't reach that destination in a day. जिस प्रकार से मुंबई से कलकत्ता एक ही मिनट में नहीं पहुंच जाते, वैसा ही हमें समय लगता है। So there's a journey slowly from my sinful nature to completely like the nature of Jesus Christ. तो ये एक सफर है जो कि बहुत धीमा है, और जैसा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसके स्वरूप बनने तक हमें सफर करते How do रहना। I know I'm in the right train? और मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं सही ट्रेन में If हूँ? I'm going further away and further from Calcutta, then I'm not in the right train. अगर जो मैं कलकत्ता से दूर होता जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं सही ट्रेन में नहीं हूँ। Or every day if I'm stuck in Bombay station, then something's wrong. That's not the right train. अगर जो हर दिन मैं बम्बई स्टेशन में ही रुका हुआ हूँ, तो मैं सही ट्रेन में नहीं हूँ। So if I'm still defeated by the same old sins I was 10 years ago, then I'm stuck in the starting station. That's a wrong train, brother. अगर जो 10 साल पहले जहाँ पे था वहीं पे मैं अभी भी अटका हुआ हूँ, इसका मतलब मैं सही ट्रेन पे नहीं हूँ। Because if I'm on the right track, year by year by year, I'm becoming more like Jesus Christ. अगर जो मैं सही मार्ग में चल रहा हूँ, तो हर साल जैसे साल बीतता जा रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप बनता जाऊंगा। It may be many lakhs of miles to the destination, हो सकता है कि कई लाखों किलोमीटर का जो है सफर करना I'll be पड़े, getting closer. लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के समीप I आता will not रहूंगा। be defeated by the same old sins I was defeated by 10 years ago. और 10 साल पहले जो पाप से मैं पराजित होता था, वो अब मैं उससे नहीं But होऊंगा। here's the worst part of it. लेकिन बहुत बुरा खबर भी ये Some है, believers, कुछ विश्वासी the लोग time they are born again, जैसे ही वो they विश्वास में give आते up many हैं sins. और उन्होंने कई पाप किया है, 10 years later, 10 साल के बाद, they are doing things they didn't do 10 years ago. और 10 साल पहले जो नहीं किया था वो अब करने लगे हैं। You gave up pornography when you were born again, but you're now into it again. और पहले जब आप पश्चाताप किया उस समय छोड़ चुके थे, उसके बाद वापस उसी में आ गए। Things like pornography, sexual sin. और जैसे कि अश्लील तस्वीरें देखना, And so then you're going backwards. तो आप पीछे की ओर खिसक रहे हैं। You were better off when you were converted. Instead of going forward, you're going backwards. और जब आप मन फिराए थे, उस समय से भी बुरे अवस्था में अभी पहुंच गए हो। You must see your destination. और आपको अपना जो ठहराया And हुआ, the Holy Spirit is the power to help you to reach that और destination. पवित्र आत्मा वो सहायता देगा कि आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप बनने That के is लिए। the primary purpose of the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। I'll give you the one verse that most clearly describes in the whole Bible the ministry of the Holy Spirit. और एक ऐसा वचन मैं आपको बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है वो पूरी अच्छे संक्षिप्त तौर से समझाया गया है। Like Moses saw the cloud and the fire on top of the tabernacle. जैसे मूसा ने जो है तंबू के ऊपर परमेश्वर के अग्नि को देखा, This is how you can know the fire of God is upon your life. इसी प्रकार इसी समान आप भी समझ सकते हैं परमेश्वर के आग आपके ऊपर है या नहीं। What that symbolized was the power of the Holy Spirit. और वही चिन्ह है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ का। 2 Corinthians chapter 3, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय verse 18. उसका 18। It says here that without a veil we look at a mirror. और Verse 18. यहाँ पे लिखा है कि बगैर पर्दे के हम देख सकते हैं करके। In a mirror. हाँ, जो शीशा होता है, That is a picture of the Word of God. और ये है परमेश्वर का वचन। So, there's no veil. The veil is referring to the law in the Old Testament. और यहाँ पे जो पर्दा है वो परमेश्वर के आज्ञाओं के व्यवस्था को You दिखाता read है। that in the previous verses, और उससे पहले वचनों में लिखा हुआ है, especially verse 14. खास करके 14 में। But it says this law is gone now. अब हम देखते हैं कि वो जो नियम है वो Now, हटा लिया when गया I है। look, you see, in the Old Testament, when I looked at God's word, I saw the law. जब मैं पुराने नियम में देखता हूँ तो परमेश्वर की व्यवस्था नजर आती है। Now that's gone. अब वो चला गया है। Now when I look at the word of God, लेकिन जब अब मैं वचन की ओर देखता I हूँ, see the glory of the Lord Jesus. अब मैं देखता हूँ प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप को। If you're still seeing rules and regulations and thou shalt and thou shalt not, you have not understood the New Testament. अगर जो आपको जो कानून आपको नजर आता है या परमेश्वर की व्यवस्था नजर आते हैं, इसका मतलब आप नए नियम में नहीं हो। So many churches are like that. और बहुत सारी कलीसियां इसी प्रकार है। Preacher gets up with a new set of laws. Thou shalt not, thou shalt not. वहाँ पे प्रचारक जो है नए नए कानूनों के साथ जो है नए नए व्यवस्थाओं के साथ खड़े हो They जाते may हैं। not be the same 10 commandments Moses gave, और वो 10 हुक्म जो मूसा ने दिए वो नहीं, but new commandments. लेकिन नए नए कानून। Even Moses never gave in the 10 commandments, thou shalt pay thy tithe. हाँ, हो सकता है कि मूसा ने भी ऐसा कानून नहीं बनाया होगा कि टाइप देना है करके। You know, that's not one of the 10 commandments. आप लोग जानते हैं कि वो 10 हुक्मों में नहीं है, One of the main commandments for pastors today. लेकिन आज पासवानों का जो है मेन व्यवस्था वही This है। law has gone.
और जो व्यवस्था है वो जा There is चुका है। no thou shalt not in the new covenant. और नए व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। I see the glory of Jesus in scripture. और मैं अब परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप देखता No हूँ। laws. अब कोई व्यवस्था If you नहीं। see laws, then the veil is there. You won't understand अगर जो आप scripture. व्यवस्था को देखते हैं तो अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है He said the veil is taken away. और कहते हैं कि पर्दा हट गया है। When we turn to the Lord, verse 16, the veil is taken away. और 16 में देखते हैं कि वो पर्दा जो है उठा लिया गया And the है। Lord is the Spirit, verse 17. और 17 में लिखा है कि अब So- प्रभु तो आत्मा है। If I read the Bible without the Holy Spirit, there's a veil there. अगर जो आज मैं बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ के वचन पढ़ता हूँ तो वहां पे पर्दा it's पड़ा है। like putting a cloth over the Bible and trying to read it. इसका मतलब ये है कि कोई कपड़ा मैंने वचन के ऊपर डाला है और मैं पढ़ने की कोशिश कर No रहा wonder हूँ you don't understand it. और ऐसे में नहीं समझ में आएगा And no wonder you get so many wrong doctrines from it. और उसमें से गलत सिद्धांत लोगों को मिलेगा। Get rid of that veil. और उस पर्दे को हटाएं। How? और अब How? When you turn to the Lord, it's taken away, it says. और जब आप परमेश्वर की ओर फिरोगे तो ये पर्दा That हट means you जाएगा। say, Holy Spirit of God, open my blind eyes. और हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंधे आंखों And को खोल then, दिया। what do I see? और उसके बाद मुझे क्या नजर आएगा? The glory of Jesus Christ, the Holy Spirit shows me. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप को पवित्र आत्मा दिखाएगा। So many wonderful things as I've seen in Scripture, the glory of Jesus. और बहुत सारी खूबसूरत बातें मैंने इस पवित्र कलाम में देखा है जो कि प्रभु यीशु मसीह के He तेजस्वी रूप shows को me, दिखाता है। this is your destination, He shows me. और वो बताता है कि यही तुम्हारा लक्ष्य He है। gives me a glimpse of my destination, not heaven, but the glory of Jesus. और वो मुझे अपना लक्ष्य यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप मुझे दिखाता I है। don't want to see heaven. और मुझे स्वर्ग नहीं देखना I have no interest in that. और उसमें मेरे को कोई खास रुचि नहीं I है want to see the glory of Jesus because that is my destination. क्योंकि मेरा लक्ष्य यह है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप देखना है। I mean, if you're going to Calcutta to see your husband or your beloved husband or wife, you're not worried about the glories of Calcutta. You're going to meet your husband or wife. अगर जो आप कलकत्ता में जा रहे हैं अपने प्रिय पति या पत्नी से मिलने के लिए तो आप उस कलकत्ता के तेजस्वी के बारे में नहीं चिंता करेंगे लेकिन आप अपने पति पत्नी के बारे में सोचेंगे। That's how I'm living my Christian life. और इसी प्रकार मैं अपना मसीह जीवन जीता But when हूँ। I see the glory of Jesus, जब मैं प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप देखता हूँ, like when Isaiah saw the glory of God, he said, "Oh God, I'm such a sinful man." और जैसे यशायाह नबी ने कहा प्रभु परमेश्वर का तेजस्वी रूप को, तब उसने कहा कि मैं कितना जो है दुष्ट व्यक्ति हूँ, So पापी व्यक्ति हूँ। when I see the glory of Jesus in Scripture, जब मैं प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप देखता हूँ I इस वचन see में, my tremendous need, how unlike Christ I am. और तब मुझे समझ में आता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से कितना रूप में मेरा दूरी है करके, या बिगड़ा हुआ रूप है। God is my witness that I see that every day. और प्रभु परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं हर रोज उस चीज को देखता हूँ, महसूस करता हूँ। How beautiful Jesus is. और कितना खूबसूरत है हमारा How प्रभु यीशु, glorious He is. How glorious He और is. कितना महिमा भरे तेजस्वी है वो। And I see my need. और मुझे महसूस होता है मेरी जरूरतों, Some new area, I am unlike Him. और कई ऐसे स्थान है जहाँ पे मैं प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं हूँ, That would discourage me. और वो मुझे निराश करता है। But it doesn't. लेकिन नहीं, Because it says in the next sentence क्योंकि उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, that He's going to change me into that glory. That's the other ministry of the Holy Spirit. और वहां पे लिखा है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते Not हैं, in one moment, एक ही क्षण में नहीं। but it says here from glory to glory to glory to glory to glory to glory. इसका मतलब ये कि तेजस्वी रूप से तेजस्वी रूप की ओर ऐसे धीरे धीरे अंश अंश It's करके बदलते हैं, like 1 mile at a time towards Calcutta. यानी कि कलकत्ता की ओर एक एक माइल करके हम आगे So बढ़ रहे हैं, glory to glory to glory to glory, becoming more and more like Christ. यानी कि महिमा से महिमा, महिमा से महिमा करते हुए ऐसे तेजस्वी रूप में बदलते हैं। This is what I've preached for 40 years. और यही 14 साल से मैं प्रचार कर रहा Because हूँ, it changed my life 40 years ago. और 14 साल पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। When I saw my destination was not heaven, but to become जब मैं like Christ. समझने लगा कि मेरा जो लक्ष्य है वो स्वर्ग नहीं, And if I'm not becoming like Christ every year, then I'm on the wrong train. अगर जो मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं बदल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं गलत पटरी पर हूँ, That means I'm in the wrong church. इसका मतलब मैं गलत कलीसिया में हूँ। If your church is not helping you to become more like Jesus every year,
My brother, sister, I'm not here to criticize your church, but you're in the wrong church. तो अगर जो आपकी कलीसिया आपकी मदद नहीं कर पा रही है आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आप गलत कलीसिया में You हैं। better find one pretty quickly that'll help you to become like Christ every year. और मैं एक और वचन बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के समान आपको बनने में मदद करेगा। Find a church like that वैसा एक कलीसिया आप ढूंढे that'll lead you to become more like Christ. जो आपकी मदद करे प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के Not लिए। that'll help you to do more evangelism. वो कलीसिया नहीं जहां पे आप ज्यादा सुसमाचार प्रचार It's कर no सकते use हैं। doing more evangelism if you're not becoming like Christ. और अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बनते हैं तो सुसमाचार की मनादी करके कोई फायदा नहीं। Jesus wants you to love Him and be like Him. That's more important. और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के समान बने। We need to have priorities in our life. और हमें कई चीजों के लिए मुख्य स्थान देना जरूरी है। What do you send your children to school for? आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? Supposing your child comes home one day and says this to you from Agar- school. Your child comes back from school one day और आपका बच्चा जो है स्कूल से वापस आकर लौटकर ऐसा and कहता है says, आपसे Mom, I played marbles today and I won 20 marbles. कि मैंने आज स्कूल में कंचे खेले और मुझे 20 और कंचे की जरूरत है। And she said, Son, what do you get in mathematics? तो बोल गया कि गणित का क्या हाल है? I got about 5%. केवल 5% अंक But I मिले। got 20 marbles. लेकिन मुझे जो है 20 कंचे चाहिए। What do you tell him? तो आप उससे क्या कहेंगे? Great, my son, get more marbles tomorrow. हाँ तो अरे बहुत अच्छा किया, कल जो है 20 और कंचे लेकर आओ। There's nothing wrong with playing marbles. I also used to play it in my school days. हाँ कंचे खेलना कोई गलत बात नहीं है, मैं भी अपने स्कूल में खेलता था। But I didn't go to school to learn to play marbles. लेकिन मैं स्कूल में कंचे खेलने नहीं जाता था। What do you send your children to school for? आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? Jesus has not left us on earth to do a lot of work for Him. प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में इसलिए नहीं छोड़ा कि हम बहुत सारे कार्य करें, Become like Him. हमें इसलिए छोड़ के किया कि हम उसके स्वरूप में बने। As we become like Him, our life will overflow in service that will make other people like Him. और जब हम उसके स्वरूप में बनते हैं तो वो हमारे जीवन को इतना भर देता है कि वो हमारे जीवन से उमड़ने लगता है और हम दूसरों को भी मदद करते हैं कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के समान बने। Proverbs 4:18. नीति वचन 4 उसका 18 देखेंगे। Proverbs 4:18. नीति वचन 4 उसका 18। The path of a righteous man, यहाँ पे देखिएगा जो धर्मी व्यक्ति के मार्ग, and if you're justified by Christ, you're righteous. अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका न्याय हो गया तो इसका मतलब आप जो है एक धर्मी व्यक्ति हैं। So here's the path God has planned for you. देखिएगा जो मार्ग प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, Like the sunrise at the light of dawn, जैसे कि चाल से चमकती हुई ज्योति के समान है। that is the sun rising in the sky. यानी कि सूर्य जब उदय होता है और चमकता है, It's very clear in English, it's the light of sunrise. यहाँ पे अंग्रेजी में जैसे कि सुबह यानी कि उदयाचल में जब And it सूर्य gets- उगता है, Rises more and more and more and more until the perfect day, that is when Christ comes back. और वो चमकता जाता है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट ना हो। So if I'm going on the right track, अगर जो मैं सही मार्ग पर हूँ, my light won't become perfect in one day, मेरा जीवन जो है एक ही दिन में but सिद्ध नहीं हो it will जाएगा। get brighter, brighter, brighter and brighter. वो जो है और उसका तेज या चमकना बढ़ता जाता है। Like the sun, जैसे कि सूरज making का the होता day है। brighter and brighter and brighter till it reaches overhead. जैसे कि उदयाचल से वो उदय होता है और उसके बाद वो तेज रोशनी देने लगता That is है, the path of the righteous. और यही धर्मी का मार्ग है। This is exactly what we read in 2 Corinthians, what we read just now in 2 Corinthians 3:18. और वही दूसरे करंथियों 3 उसके 18 में जो हमने पढ़ा, The Holy Spirit जो पवित्र आत्मा है, leading us from glory to glory to glory to glory, तो पवित्र आत्मा हमें महिमा से महिमा में लेके transforming us जाएगा into the likeness of Christ. जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ना बन And जाए, since He's our elder brother, क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है। whatever God did for Jesus, He'll do for us. और जो कुछ उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वो सब हमारे लिए भी If करेगा, we fulfill the same conditions. अगर जो आप उन सब चीजों को पूरा करते